Hello friends, welcome once again. Now in the personal interview, आप लोगों को पता there are multiple CIQs and one of them is CIQ on spare time, interest, hobbies and games. And this CIQ reads something like this. I'll just quickly read it. That gives me a good idea about your education, family and related matters. Now these are the earlier CIQs. CIQ in education, CIQ in early home background. Now, please tell me how you spend your spare time. What are your hobbies? And when and how did you choose these? How do you compare your level now in respect to your hobby since the time you started? What are the games oblique sports in which you have participated in school oblique college with family members and with neighborhood friends? Your daily routine both on a working day and on a holiday, and about your reading oblique writing habits and TV watching habits. Okay, I'll not go through the entire CIQ because this CIQ has already been covered in the earlier videos. I'll highlight certain key portion. Now the first highlight portion is, now please tell me how you spend your spare time. What are your hobbies? When and how did you choose these? How do you compare your level now in respect to your hobby since the time you started? And नीचे का है about your reading and writing habits. About your reading and writing habits. I'm just highlighting certain portion which I'm going to cover through this video. Now, many times candidate either in the class or maybe online में भी जब मुझसे कांटेक्ट करते हैं सो वो बोलते हैं सर हमारा तो कोई हॉबी या इंटरेस्ट बताने लायक नहीं है. And this is okay as long as your background is able to justify it. For example, from a rural background जहाँ पे there are economic hardships in the family, आपको परिवार में मदद करना पड़ता है, you don't have that privilege of going to a good school, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो, घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो समझ में आता है. But when all those things are good, still if you don't have any worthwhile hobbies and interests or reading habit, then it creates a question mark कि आप अपने टाइम का यूटिलिटी कैसे करते हो. सो प्लीज टेल मी हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम. क्या करते हो स्पेयर टाइम में? एंड एसएसबी के प्रिपरेशन में हाउ हैव यू यूज्ड दैट स्पेयर टाइम? दिस इज अनदर क्वेश्चन. वी विल टॉक अबाउट इट इन अ subsequent separate video. What are your hobbies? When and how did you choose? तो जब आपके पास मौका है तब भी आपने नहीं किया तो सवाल आएगा. सो मैं ये बोलता हूँ अगर आपका कोई हॉबीज एंड इंटरेस्ट नहीं है, अभी आपके हालात चेंज हो गए, यू वर्किंग, यू हैव नो कंस्ट्रेंट ऑफ अर्लियर जो आपके घर में था, देन वन हॉबी दैट यू कैन पिक अप इज बुक रीडिंग. नाउ ये एक ऐसा हॉबी है जिसको आप धीरे धीरे कल्टिवेट कर सकते हो and it can become a meaningful hobby as well as a tool for self development. Now book reading is not कि हैरी पॉटर की कहानियां पढ़ ली, सरिता पढ़ लिया, चंपक नंदन पढ़ लिया, not that. Certain books that helps you to grow as a person, which helps you to understand you as a person, है ना. और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मैंने अपने एफओसीपी के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो ही डाल रखा है जिसमें बुक्स फॉर सेल्फ डेवलपमेंट करके करीब 24-25 बुक्स का उसमें नाम दिया हुआ है. यू कैन गो एंड चेक इट, और इन केस यू वांट यू कैन शेयर मी, आई विल शेयर यू द लिंक. नाउ वंस द बुक का लिंक मिलने के बाद एक क्वेश्चन और आता है, सर इसको शुरू कैसे करें? हमें बुक रीडिंग की आदत नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है. कंसंट्रेशन इसलिए नहीं है बिकॉज आजकल का जनरेशन जो है वो व्हाट्सएप में अपना मोबाइल के ऊपर कच्चा बादाम देख देख के, रील्स देख देख के, और कॉन्सेंट्रेशन हैज एक्चुअली गॉन वेरी लो. सो now that's a practical problem. इस वीडियो में I will explain it. In fact कैसे इसको रीड करना, उसके लिए मैं एक बुक को ही लूंगा और उस बुक का नाम है द पावर ऑफ नाउ. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस बुक. अगर देखा है या सुना है या पढ़ा है तो प्लीज मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, सर आई हैव हर्ड दिस बुक्स और आई हैव रेड दिस बुक, या जो भी है. आपने नहीं किया तो नहीं किया, थोड़ा बताओ मुझे. सो द बुक का नाम है द पावर ऑफ नाउ. सो आई टेल यू इस बुक को पढ़ने के लिए फॉर एग्जाम्पल इसी से शुरुआत कर लो एंड आई विल मेक इट रेलेवेंट टू योर एसएसबी प्रिपरेशन. तो इस बुक का जो ऑथर है उनका नाम है एकार्ट टोले. नाउ ही इज अ जर्मन बॉर्न पर्सन. थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड अगर ऐसा है एकार्ट टोले का, ही वॉज born in Germany and he is a spiritual teacher and a writer known for translating deep inner awareness into simple practical language, है ना. तो
ट्रांसलेशन का मतलब जो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स होते हैं उनका ट्रांसलेशन सिंपल लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल भाषा में, जो हम और आप इसको जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं. इज जर्मन बॉर्न पर्सन. Now, इनका background ऐसा है, after years of emotional struggle and depression in his early life, he experienced a profound inner shift in his late 20s that led him to a state of sustained presence and clarity. Sustained presence मतलब present in the moment, present now, and clarity मतलब inner clarity. SSB में भी हम power of expression में clarity word use करते हैं. Your ability to express your ideas adequately with ease and clarity. So inner clarity होगा तो ही तो external clarity आएगा. Now एकार्ट टोले के बारे में बताते हैं कि मतलब उनका जो 20s के टाइम में he himself was going through an emotional struggle and depression, and for some reason he was able to come out of it with profound inner shift, मतलब आंतरिक transformation के through, and then ever since that he is into the domain that we just saw. He does not belong to any religion or philosophy. वो ना Christianity, इस्लाम या हिंदुइज्म किसी एक चीज के पीछे नहीं है. But his philosophy is broader, and therefore because he is not confined to any particular belief system, so his work focuses on conscious awareness, emotional balance, freedom for compulsive thinking. मतलब obsessive thinking में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, हाइपरक्रिटिकल थिंकिंग में चले जाते हैं, पुरानी चीजों में फंस के उसी के ऊपर सोचना. कंपल्सिव थिंकिंग, मजबूरी में आप सोच रहे हो, which is why his ideas resonate across cultures, profession, age group. तो इनका जो बुक है, क्योंकि वो किसी रिलीजन से बंधा नहीं है, किसी पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम से बंधा नहीं है, इट इज टॉकिंग अबाउट कॉन्शियस अवेयरनेस, मेटाकॉग्निशन बोलता हूँ, थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, इमोशनल बैलेंस, इनर बैलेंस, है ना, हमने पिछले वीडियो में उसके बारे में बात किया था, एंड फ्रीडम फॉर कंपल्सिव थिंकिंग. तो इस वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे. नाउ ये बुक जो है 10 चैप्टर्स में बटा हुआ है, शॉर्ट चैप्टर्स बट वेरी डीप चैप्टर्स, एंड इसमें जो लिखने का स्टाइल है वो एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में है. तो कुछ सवाल पूछें और उसके जवाब के फॉर्म में ये बुक को स्ट्रक्चर किया हुआ है. और ये जो 10 चैप्टर्स है वो इस तरह से, जो ओरिजिनल बुक्स है, इसके जो लेटर एडिशन में एक आध अगर ऐड हो गया तो अलग बात है, तो ओरिजिनल बुक में जो चैप्टर्स है वो कुछ इस तरह से है. पहला, यू आर नॉट योर माइंड, कॉन्शियसनेस, the way out of pain, moving deeply into the now मतलब present, mind strategies for avoiding the now, the state of presence, the inner body, portals into the unmanifested, enlightened relationship, beyond happiness and unhappiness, there is peace, the meaning of surrender. हम इन चैप्टर्स के अंदर नहीं घुसेंगे, बिकॉज आई एम श्योर अगर आप ये बुक को पढ़ोगे तो ये पता चल जाएगा, Q&A फॉर्मेट में दिया हुआ है. बट इस बुक को मैं एक पूरा का पूरा एक फ्लो में आपको बताऊंगा कि इस बुक के अंदर का सार क्या है, एंड हाउ कैन यू यूज इट फॉर बोथ रीडिंग पर्पज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन फॉर योर SSB प्रिपरेशन. इनफैक्ट जब आप SSB में बोलते हो कि सर मेरा बुक रीडिंग है, तो बोलते हैं कि विच आर द लास्ट 3 बुक्स दैट यू हैव रेड. सो इफ यू से दिस, सो दे मे आस्क कि उस ऑथर के बारे में थोड़ा बताओ, उस ऑथर के विच आर द अदर पब्लिकेशंस, मतलब अदर बुक्स कौन से, इस बुक में व्हाट इज द मोस्ट profound thing that you felt out of all the things that he has covered, anything that you have been applying to your life जिसके कारण आपको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ बदलाव आया. Now these are all application of the knowledge that he has shared through this book. So इस बुक में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप actually अप्लाई कर सकते हो, not only for your preparation for the SSB but for your life. So उस लिहाज से what I'll do is I'll tell you कि जब when you read this book, don't read it just for the sake of reading and saying कि मैंने एक बुक पढ़ा है. Read it with the intent to apply it for your preparation for the SSB as well as for your life. So इस बुक के जो chapters है, chapter number 1 से लेके 3 तक है, this talks about mental awareness, how to be aware about what's happening within you, metacognition, thinking about your own thinking, अपने ही विचारों के बारे में विचार कर पाना. Then is emotional self regulation के बारे में, कि जब आपके भावनाओं में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, किस तरीके से उसके अंदर एक तरीके संतुलन लाना है. एंड प्रेजेंस का मतलब वर्तमान में, इन द करंट सिचुएशन, योर एबिलिटी टू बी इन द प्रेजेंट, बजाय कि पास्ट में जाना या फ्यूचर में ऑसिलेट करने के बीच में, योर एबिलिटी टू स्टे स्टिल इन द प्रेजेंट. सो दीज आर दी
चैप्टर्स, these are the things covered in chapter number 1 से लेके 3 तक. चैप्टर नंबर 4 से लेके 6 जो है, it talks about how to handle stress, body awareness, your physical awareness, how your body is responding to various stimuli, and reaction control, मतलब regulation in the way you're responding to various situations. मैं बोलता रहता हूँ, between the stimulus and the response you have the freedom of choice. So how do you exercise that freedom of choice without getting into a reactive mode? So that's between chapter 4 and 6. Chapter 7 से 9 में emotional maturity, एंड रिलेशनशिप के बारे में, एंड इंटरनल स्टेबिलिटी, इनर स्टेबिलिटी के बारे में. इमोशनल मैच्योरिटी, आपको पता है, इमोशनल अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस ऑब्लिक इमोशनल रेगुलेशन एंड इमोशनल मैच्योरिटी. दीज आर दी स्टेजेस थ्रू विच योर इमोशंस की जर्नी शुरू होती है. आई विल टेक अ सेपरेट चैप्टर इन केस वी फील दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज OLQ में जो फैक्टर 2 के OLQ है, सोशल adjustment, उसके अंदर social adaptability, cooperation, sense of responsibility is actually corresponding to the qualities of your EQ. So emotional maturity is an important element in that. And chapter 10 is acceptance under pressure. Under pressure, your ability to accept that situation and handle it, है ना. जैसे हमको कोचिंग में हमें बता दिया जाता, डेड बॉडी का ड्रामा कर दो, या अगर आपके वीकनेस है कोर क्वालिटी में, उसको छुपा दो, सुसाइडल टेंडेंसी छुपा दो. नो, दैट्स नॉन एक्सेप्टेंस. लेट्स एक्सेप्ट इट एंड करेक्ट इट. Similarly, in the SSB, when there are situations presented to you where you feel stress, you need to accept them and handle them. This is extremely, extremely critical for your life performance as well as in the performance in the SSB, right? So this is the way you can read this book and make notes of it, and then you know कि chapter 1 to 3 में ये आएगा, 4 5 6 में ये आएगा, एक तरीके से. तो आपका एक मेंटल मैप बन जाएगा, what are you going to get in this book. और इसी टेम्पलेट्स को इसी तरह से बाकी बुक्स के भी आप कर सकते हो, ताकि आपको एक पढ़ने में एक इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, एंड मेक मीनिंगफुल रीडिंग हैबिट, राइट. नाउ लेट्स कम बैक टू द book review for this book, The Power of Now. I'll give you a very clear and practical summary of this book that you can not only apply in your day-to-day life, also for your SSB, and this will help you to read this book in a more profound and a more focused manner, because एक पूरा आपको एक guideline already मिल जाएगा, right? With that as the start, we'll start. और अगर आपको ये अच्छा लगे तो मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना. देन मैं क्या करूँगा, शायद कोशिश करूँगा महीने में 2 बुक का बुक रिव्यू बना के इस तरह से डिटेल में आपको शेयर करूंगा थ्रू वीडियोस, एंड ऑल्सो आई विल टेल यू हाउ यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ एंड SSB. उससे आपका एक कोरिलेशन मिलेगा और एक टेम्पलेट बन जाएगा, ताकि किसी भी बुक को जब आप पढ़ो तो आप उस तरीके से सोच सकते हो. इससे आपका एक एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगा, और बुक को मीनिंगफुली पढ़ना और उसको अप्लाई करना, और अगर SSB में पूछते हैं तो उसको बोलने के लिए भी मदद मिलेगा. सो जरूर कमेंट लिखना, राइट. Okay, so now this book, इसका जो central theme है या जो central idea, it revolves around one core principle, and that is real peace, clarity and freedom are only available in the present moment. क्या बोलता है? Real peace, inner peace, है ना, clarity, internal clarity and freedom to choose your responses are only available in the present, the power of now, present moment. ना past में ना future में. पास्ट में जाओगे तो पेन लाओगे, फ्यूचर में लाओगे तो फियर ऑफ फेलियर एंड एंजाइटी लाओगे. प्रेजेंट इज द वन दैट शुड बी इन योर कंट्रोल. पास्ट हो चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं है. Present is the one which is in your control, right? So the real peace, clarity and freedom are only available in the present moment. This is the one central idea around which this entire book is written. Is that clear? Now what it means is, जैसे आप हो तो आप ग्रीन में खड़े हो, that is the present, वर्तमान, है ना. Present is here, you have to live this. And पीछे past हो चुका है, कुछ अच्छी घटना है, कुछ बुरी घटना है, और फ्यूचर अभी आया नहीं है, आएगा. सो द सेंट्रल थीम ऑफ दिस बुक इज बी इन द प्रेजेंट नाउ, राइट. इस स्लाइड को हम आगे भी यूज करेंगे, और आप इंटरव्यू में देखोगे आपका जो CIQs होता है वो पास्ट में पूछा हुआ है. योर एजुकेशन, योर फैमिली, योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट. सो अगर पास्ट में वो किया होगा तो प्रेजेंट में बोल पाओगे,
और प्रेजेंट में बोल पाओगे तो उसका प्रभाव आपके फ्यूचर में आउटकम में आएगा, रिजल्ट में। पर अगर पास्ट में उन चीजों को किया ही नहीं है तो प्रेजेंट में बोलोगे क्या? विल कनेक्ट इट इन दी आइदर इन दिस वीडियो और मे बी सब्सिक्वेंट वीडियो, राइट? सो नाउ ऑथर क्या बोलता है? द मोस्ट ह्यूमन सफरिंग कम फ्रॉम लिविंग इन द पास्ट और द फ्यूचर, नॉट फ्रॉम what is happening right now. क्या बोलता है? जो ह्यूमन बीइंग का सफरिंग है, जो हम तनाव से, ओवर थिंकिंग से या अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं, दिस इज प्राइमरली, इसका जो सोर्स है वो या तो पास्ट से होता है, अतीत से होता है, या फ्यूचर से होता है, नॉट व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट। मतलब वर्तमान में क्या हो रहा है उससे कम ज्यादा दर्द कहां से आता है? पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ और फ्यूचर में कल्पना करके हम क्या देखते हैं कि क्या हमारे साथ क्या होगा। सो माइंड ऑसिलेट बिटवीन पास्ट and the future. It is not able to stay in the present. It oscillates. This is what this author wants to say. Most human suffering comes from living in the past or in the future, not from what is happening right now, present, वर्तमान, right? Now, इसका मतलब क्या है कि वर्तमान में अगर आपको तकलीफ हो रहा है, उस तकलीफ का सोर्स, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, टीएटी की तरह, वो सोर्स पीछे, व्हाट इज द फाइनल आउटकम, वो फ्यूचर में आउटकम, और हम उसको इमेजिन करके फियर ऑफ फेलियर, एंजाइटी, डिप्रेशन उसमें चले जाते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग एट दिस मोमेंट हम इसको इग्नोर कर देते हैं। माइंड एक पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करता रहता है बिटवीन दी पास्ट एंड द फ्यूचर, और जितना ये ऑसिलेशन ज़्यादा होगा उतना हम ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे, और जितना हम इसको स्टेबलाइज करके मीन पोजीशन दैट इज प्रेजेंट में ले आएंगे उतना मन हमारा शांत होगा। हैव यू अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ पेंडुलम? अगर समझ में आया तो लिखो पेंडुलम, यस। सो हमें अपने इस माइंड के ऑसिलेशन को लाइफ में भी कम करना है, एसएसबी में। कब कम होगा? व्हेन इंटरव्यू में जब जाएंगे वी आर fixed on the present, focused on the present, not oscillating between past and the future. We'll see इसका क्या मतलब है। So the core problem is identification with the mind. तो ना इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट दिए हुए उसके अंदर कोर प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने सेल्फ का आइडेंटिफिकेशन अपने माइंड और अपने विचारों के साथ बांध देते हैं। मोस्ट पीपल आर ट्रैप्ड इन दी कॉन्स्टेंट मेंटल नॉइज। क्या मतलब है मेंटल नॉइज? मतलब जो हमारे अंदर ये उथल पुथल चलता रहता है, ओवर थिंकिंग चलता है, हम सोचते हैं ये हो गया, वो हो गया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, उसको हो गया, एसएसबी में क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, मुझे करंट अफेयर्स नहीं आता, मेरा इंग्लिश वीक है, ये अंदर चैटर चलता रहता है। एंड मेंटल नॉइज को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, मोस्ट पीपल आर ट्रैप्ड इन दिस कॉन्स्टेंट मेंटल नॉइज, और जब ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है तो हम बाहर से तो शांत रहते हैं लेकिन अंदर से नॉइजी होते हैं। एसएमएल के क्लासेस में मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, वी लिव इन टू वर्ल्ड्स, वन इज आवर इनर वर्ल्ड जो हमें दिखता नहीं है, वन इज आवर आउटर वर्ल्ड। एंड व्हेन वी आर इन conflict in an inner world, when we are in conflict in an inner world, we are in conflict in an outer world, and when we are in harmony in an inner world, we will be in harmony in your outer world. So ये mental noise inner world का problem है, और जब इस मेंटल नॉइज को हम एड्रेस नहीं कर पाते, we mistake our thoughts, worries, memories and fears for who we are. हम इस मेंटल नॉइज के साथ ही अपने आप को आइडेंटिफाई कर लगते हैं और फिर हम अपने आप को हीन भावना, लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्सेप्ट में सफ़र करते हैं, एंड देन वी डोंट फील कॉन्फिडेंट बिकॉज हमारे अंदर का नॉइज हमारी पहचान बन जाती है, इंटरनल पहचान। वी नीड टू फिक्स इट। सो वी मिस्टेक आवर थॉट्स, वरीज, मेमोरीज एंड फियर्स फॉर who we are. How many of you feel able to relate with मैं जो बोल रहा हूँ? कितने लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? कितने लोग इसको महसूस करते हैं? देखो, वंस इन अ व्हाइल तो हम सब महसूस करते हैं, बट अगर कुछ लोग कॉन्स्टेंटली जो इसमें रहते हैं, दे आर इनटू ओवर थिंकिंग और हाइपर क्रिटिकल थिंकिंग, दैट नीड्स टू बी करेक्टेड, है ना। दिस क्रिएट्स एंग्जाइटी, गिल्ट, रिग्रेट एंड इमोशनल पेन। जब हम कॉन्स्टेंटली इस मेंटल नॉइज को एक्सपीरियंस करते हैं तो इससे हमें एंग्जाइटी, गिल्ट, रिग्रेट एंड इमोशनल पेन होता है। नाउ दिस इज द कोर प्रॉब्लम दैट द ऑथर हैज वांटेड टू कन्वे। सो द की इनसाइट जो इस पार्ट से वो लेना चाहते हैं ऑथर, वो बोलना चाहता है, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड देम। क्या बोलते हैं? आप वो जो विचार है गिल्ट के, एंग्जाइटी के, पेन के, आप वो नहीं हो, बट उस स्टेट के अवेयरनेस जो है, दैट इज योर स्टेट, दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन। सो यू आर अवेयर व्हाट इज हैपनिंग विद इन यू।
सो यू आर अवेयर कि मेरे विचारों में अभी उथल पुथल चल रहा है. सो द अवेयरनेस ऑफ योर थॉट्स इज व्हाट you must focus. Okay, inside you are not your thoughts, you are the awareness behind them. कि आपको पता चल रहा है मेरे दिमाग में अभी ये चल रहा है और क्यों चल रहा है और ये मुझे तकलीफ दे रहा है. दैट अवेयरनेस. बट इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट एंड इफ इट इज सिंपली हैपनिंग, इट इज लाइक यू आर ड्राइविंग ए कार विथ नो स्टीयरिंग व्हील एंड नो ब्रेक. पूरा बस स्पीड से चल रहा है, कहाँ जा रहा पता नहीं, टक्कर हो रहा है और चोट लग रहा है. राइट. सो की इनसाइड यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड देम. नाउ आपको पता है मैं अपने क्लास में जो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का क्लास होता है एफओसीपी कॉम्पोजिट बैच में, उसके अंदर वन ऑफ द की कंपोनेंट दैट आई कवर इज मेटा कॉग्निशन. अपने ही विचारों के बारे में विचार करना, थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग. इट इज कॉल्ड हायर ऑर्डर थिंकिंग. लोअर ऑर्डर थिंकिंग इज जिसमें आपके सेंस परसेप्शन, आंख कान नाक यूज करके आउटर वर्ल्ड के इंफॉर्मेशन को इनर वर्ल्ड में प्रोसेस करते हो. बट इन दिस केस आप अपने मन में ही अपने विचारों को देख पा रहे हो. मेटा कॉग्निशन इसको बोलते हैं, थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग. सो मेटा कॉग्निशन इज कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, अपने ही मेंटल प्रोसेस को देखना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. दिस इज हायर ऑर्डर थिंकिंग से बोलते हैं. और इसके दो कॉम्पोनेंट है. वन इज द अवेयरनेस ऑफ the cognition and second is regulation of the cognition. इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ये बुक का पार्ट नहीं हो जाएगा. बट यू अंडरस्टैंड कि दिस पोर्शन इज पार्ट ऑफ माई कॉम्पोजिट बैच का ट्रेनिंग एंड इट इज कवर्ड इन दी सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के कॉन्सेप्ट में कि अपने ही विचारों के बारे में विचार कर पाने की शक्ति. सो विथ दिस बैकग्राउंड, with this concept number 1, let's take the second concept. It's a psychological time versus real time. Real time मतलब वास्तविकता आज की क्या है और साइकोलॉजिकल टाइम मतलब पास्ट और प्रेजेंट के बीच में हमारा दिमाग कैसे ऑसिलेट करता है. द माइंड लिव्स इन साइकोलॉजिकल टाइम. अगर आपने माइंड को ट्रेन नहीं किया तो ये साइकोलॉजिकल टाइम में रहता है. इसको हमको रियल टाइम में लाना. रियल टाइम मतलब नाउ, अभी. व्हाट डज साइकोलॉजिकल टाइम मीन्स? देयर आर टू पार्ट्स टू इट. वन इज पास्ट. पास्ट में चला गया. नो, पास्ट इज ऑलरेडी ओवर, लेकिन माइंड वहां चला जाता है और वहां से घटनाओं को निकालता है. सो द टाइम इज ऑलरेडी ओवर. पास्ट तो खत्म होके वर्तमान आ गया है, लेकिन माइंड कहां जा रहा है? पास्ट में. दिस टाइम इज नॉट रियल, इट इज पास्ट. सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल टाइम जहां पे हम जाते हैं. और माइंड को अगर आपने ट्रेन नहीं किया तो पास्ट में जाके अच्छी बातें नहीं लाता. पास्ट में जाके कौन सी लाता है? बुरी बात है, दर्द वाली, फेलियर, रिजेक्शन लाता है. सो पास्ट में जब जाता है माइंड की टेंडेंसी होता है ये रिग्रेट करता है, ये गिल्ट में चला जाता है, ग्लानी में चला जाता है, रिजेंटमेंट में चला जाता है कि ऐसा क्यों हुआ यार, काश ऐसा होता, मैं रिजेक्ट हो गया, मैं मेरिट में नहीं आया. तो ये सब कहाँ जा रहा है? पास्ट में. पिंकी ने मुझे छोड़ दिया, गिल्ट, मैंने ऐसा क्यों किया, उसका नुकसान हो गया, मम्मी पापा का ट्रस्ट ब्रेक हो गया. सो दिस इज माइंड गोइंग इनटू द पास्ट. इट्स अ साइकोलॉजिकल टाइम. द सेकेंड इज फ्यूचर में चला जाता है. फ्यूचर अभी आया नहीं है लेकिन माइंड फ्यूचर में चला जाता है. यार पता नहीं मैं रेकमेंड होऊंगा ही नहीं, परसों कॉन्फ्रेंस है. सो कहाँ चला गया? फ्यूचर में. यार पता नहीं मैंने तो तैयारी नहीं किया, मेरा जीडी अच्छा नहीं होगा. क्या हो रहा है? माइंड फ्यूचर में जा रहा है. तो माइंड को पता है पास्ट में मैंने तैयारी नहीं किया तो प्रेजेंट तो इफेक्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट में रहने की बजाय वो फिर फ्यूचर में जाता है, यार मैंने तो तैयार नहीं किया, मेरा जीडी खराब हो जाएगा. सो इट्स ऑसिलेटिंग. कैन यू सी? इट्स ऑसिलेटिंग बिटवीन द साइकोलॉजिकल टाइम, बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट. इट इज नॉट एबल टू स्टे इन द प्रेजेंट. है ना? समझ में आया? तो बट लाइफ ओनली हैपेंस नाउ. लाइफ ओनली हैपेंस नाउ बिकॉज पास्ट तो खत्म हो गया भैया. उससे तो आपको सीख लेना है. और फ्यूचर तो भी आया भी नहीं है, पता भी नहीं चलेगा फ्यूचर आया ही नहीं है. आपको पता ना, हैदराबाद में प्लेन घुस गया डॉक्टर्स के हॉस्टल में, कितने लोग क्या क्या प्लान कर रहे थे, फ्यूचर आया नहीं, खत्म ही हो गया. सो द कंट्रोल इन यू इज ऑफ द प्रेजेंट. बट हम प्रेजेंट में उसको ना करके अगर हमने खुला छोड़ दिया तो हमारा माइंड साइकोलॉजिकल टाइम फ्रेम में ऑसिलेट करता रहता है, लेके पेंडुलम. कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया तो लिख के बताओ. माइंड ऑसिलेट्स बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, और हमें कहाँ लाना है इसको? प्रेजेंट में. हाउ मेनी आर एबल टू रिलेट इट? I'm a counselor, I'm a marriage counselor, I'm a teenage counselor, and I'm into training and development. And this is very very important कि हमारे बच्चे कैंडिडेट जो है वो प्रिपरेशन पे ध्यान ना देके आउटकम की चिंता करते हैं. बट आपको समझना पड़ेगा, प्रिपरेशन नहीं किया तो परफॉर्मेंस नहीं होगा, परफॉर्मेंस नहीं किया तो आउटकम कहाँ से आएगा. सो जब तक हम इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे, हमारा माइंड इस साइकोलॉजिकल फ्रेम में घूमता रहेगा. वी नीड टू फिक्स इट by bringing it to the real time, that is pendulum in the mean position. कमेंट लिख के मुझे बताना. सो अभी तक जो मैंने बोला
पावर ऑफ नाउ बुक का, उसको मैं एक पिक्चर के थ्रू समराइज करता हूँ। इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा इस बुक को पढ़ने में और समझने में और इसको जीवन में और एसएसबी के प्रिपरेशन में अप्लाई करने के लिए। मान लो ये आप हो, आप अपने एग्जिस्टेंस को 3 पार्ट में बांट सकते हो। क्या क्या? आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर। पास्ट हो चुका है, आज तक का जो टाइम है, अभी 1 सेकेंड पहले तक का जो टाइम है वो कहाँ चला गया? पास्ट में। न्यू ईयर 2026 2 दिन पीछे चला गया। आज वर्तमान, आज का समय, अभी का, ये सेकंड भी पास्ट में चला गया। एंड फ्यूचर, 1 सेकंड आगे जो टाइम आना है वो अभी फ्यूचर में, अब वो प्रेजेंट में आ गया एंड अब वो पास्ट में चला गया। यानी से हमारा लाइफ ही स्लिप होता जा रहा है, फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहा है, प्रेजेंट से पास्ट में जा रहा है। तो एनडीए वाले का पास 16-17 साल, मेरा 56, 57 ईयर्स, 58 ईयर्स, आपका 24 ईयर्स, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर इज दैट। सो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये आपका एसएसबी में भी है। What led to the situation? Past. What is currently happening? Present. What is the final outcome? Future में. Can you see this? So SSB के preparation में भी past is your preparation phase. Present is how do you perform in the SSB? That 4-5 days, and future is the outcome on the conference day. All of us want to get recommended. That is in the outcome stage, future में. But that is based on present में what you perform. And that performance is based on past में how you prepare. So preparation is the key to success. This has to be very very clearly understood, and इस book में बहुत अच्छे से explain किया हुआ है. In fact, this is the concept on which the entire A4CP training is built, और आपको मेरे videos में भी वो दिख रहा होगा, right? So past, present, future. Now past में हमारे memories है, experience है, अच्छे भी बुरे भी, हमारे जो हम तैयारी कर रहे हैं. फ्यूचर में इमेजिनेशन है कि मैं रेकमेंड होना चाहता हूं, मेरी शादी होगी 2 साल के बाद, मेरे को मैं कैप्टन बन जाऊंगा 3 साल के बाद, बने नहीं हूं, फ्यूचर में इमेजिनेशन है ना। मेरा 2 महीने के बाद एसएसबी इंटरव्यू होगा, हुआ नहीं है, इट्स इन द फ्यूचर। नाउ इनवेरेबली अगर आपने माइंड को ट्रेन नहीं किया तो पास में जाके वो दर्द लेके आता, अच्छी बातों को नहीं लाता, उसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा। यार ये हो गया, वो हो गया, पापा ने डांट दिया, इतनी अच्छी बातें होंगी उसकी बात नहीं करेंगे, दर्द की बात करेंगे। दैट्स द नेचर ऑफ माइंड। इस बुक में बोला है कि अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो बाय नेचर ये पास्ट में ये चीजें लाएगा, पेन, एंड फ्यूचर में एंजाइटी लाता है। अच्छी चीजें लाने के लिए आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। एसएसबी बोलते हैं ना बी पॉजिटिव, बट बी पॉजिटिव होगा कैसे? यू हैव टू ट्रेन इट, अदरवाइज ये फियर ऑफ फेलियर, एंजाइटी, मेरा यार इंटरव्यू ऑफिसर बहुत स्ट्रिक्ट हो गया तो क्या होगा, ऐसे सोचता है ना। सो द माइंड का नेचर है, जब ये पास में जाता है पेन लेके आता है मेमोरी से, और फ्यूचर में इमेजिन करता है एंजाइटी को। दैट्स द नेचर ऑफ माइंड। इसको हमको ठीक करना है, जबकि हमको करना क्या है, पास में जाके हमें अपनी गलतियों से सीख लेना है। इफ यू आर रिपीट अ कैंडिडेट फ्रॉम एसएसबी, यू शुड नॉट गो विद द सेम इनपुट दैट यू वेंट लास्ट टाइम। यू हैव टू आइडेंटिफाई इट, एक्सेप्ट इट, करेक्ट इट एंड देन गो। अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वीक है पिछले बार, इस बार भी वीक है, तो आपने इनपुट ही चेंज नहीं किया। तो इनपुट चेंज नहीं किया इसका मतलब यू नॉट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। एसएसबी तो बोलता है इंट्रोस्पेक्ट, वेयर इज द इंट्रोस्पेक्शन, एंड वंस यू लर्न देन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। But if you are not learning from your past mistakes, then you are not preparing and correcting for the future. फिर आउटकम कहाँ आएगा? So learning and preparation के बीच में आता है action. Now, if you don't act now, the mind will keep jumping between the past and the future like a monkey. It's called a monkey mind. This is the core idea in this book. कितने लोगों को समझ में आया? मुझे बताना क्या समझ में आया, राइट? अगर ये डायग्राम समझ में आ रहा है तो इसको रखते हुए लेट्स गो फर्दर। मुझे जरूर इस पिक्चर पे कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया। इट इज़ वेरी प्रोफाउंड, इट इज़ क्वाइट मीनिंगफुल, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ बुक रीडिंग करके मैंने एसएसबी में हॉबी बोलने के लिए, इट हैज मीनिंग इन इट, राइट? सो प्रैक्टिकल टेक अवे इस पोर्शन, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर है, यूज द पास्ट एंड फ्यूचर ओनली व्हेन नीडेड फॉर प्लानिंग एंड लर्निंग। So learn from your mistake, correct your mistake, prepare for the future, but don't stay there. ना past में रहो, ना future में रहो, present में रहो। दोबारा, use the past and future only when needed. जब आपको जरूरत हो past में जाओ, information लाओ, process करो और future के लिए plan करो, but वहां पे रहने की जरूरत नहीं है।
ना आपको पास्ट में रह के दुखी आत्मा बनना, ना फ्यूचर में जाके मुंगेरी लाल के सपने देखने। एक्शन कहाँ लेना है? प्रेजेंट में। समझ में आया ये पॉइंट तो मुझे जरूर बताना। डू नॉट इमोशनली लिव देयर। रोते मत रहो, दुखी आत्मा है मेरे साथ वो हो गया ये हो गया। You know, when I look back at my life, from my education to my, joining the army as a jawan, becoming an officer, completing 12, clearing SSB, marriage, child, loss of my wife, subsequent journey. There are so many failures, but I am very happy to say I've not stuck there. I've only become better from those life events, even though the situations were not good. सो परिस्थिति क्या होती है, जो भी होता है वो 10%। उस परिस्थिति में आप क्या प्रतिक्रिया देते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमको पास्ट से क्या करना है? यू हैव टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, and for the future you have to prepare, and all these things happen in the present, and no amount of guilt can change your past. कितना भी आप रोते रहो, आपका पास्ट चेंज नहीं होगा, एंड नो अमाउंट ऑफ एंजाइटी ऑब्लिक वरिंग कैन चेंज द फ्यूचर। आप कितनी भी चिंता कर लो, कितना भी एंजाइटी में चले जाओ, इससे आपका फ्यूचर चेंज नहीं होगा। क्या आपके कंट्रोल में होना? बी इन द प्रेजेंट एंड एक्ट नाउ। वो SSB हो, जीवन हो, what you do today will determine what will happen to you in the future, not by thinking about the past or worrying about the future. इस स्लाइड को मुझे कमेंट लिख के बताना, इज इट रेलेवेंट? क्या आपको समझ में आ रहा है? इस बुक का एक कोर थीम है, और आपने देखा होगा एयरफोर्स यूपी का भी लाइफ लाइन एनालिसिस में एक कोर आइडिया है जिसके ऊपर पूरा ट्रेनिंग बेस्ड है, लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कमेंट लिख के जरूर मुझे बताना, राइट? ओके। Next is the pain body. Now, next idea that he has conveyed through this book, the pain body is stored in emotional pain from the past. So, जो हमारे इमोशनल नेगेटिव एक्सपीरियंस है पास्ट का, जब हम उसके बारे में सोचते हैं, वो हमारे वर्तमान को दर्द में बदल देता है, एंड उसको पेन बॉडी बोला हुआ। पेन बॉडी इज स्टोर्ड इन द इमोशनल पेन, एंड इट इज स्टोर्ड वेयर? इन द पास्ट। सो हम जो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे इस लड़की का फोटो है, तो इसका जो सोर्स है, दर्द अभी हो रहा है, और वो दर्द का मैनिफेस्टेशन के शरीर में दिख रहा है, लेकिन इसका जो सिचुएशन का, इस सिचुएशन का जो व्हाट लेड टू द सिचुएशन है, वो पास्ट में है, TAT की तरह है ना। द पेन बॉडी इज स्टोर्ड इमोशनल पेन फ्रॉम द पास्ट, राइट? इट गेट्स एक्टिवेटेड ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस और इमोशनल ट्रिगर्स। जब भी हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है, स्ट्रेस आता है या इमोशनल ट्रिगर्स आता है, तो हमारा माइंड क्या करता है? पीछे जाता है, उन घटनाओं को उठा के लोड कर देता है, एंड वी एक्सपीरियंस व्हाट दिस गर्ल इज एक्सपीरियंसिंग। कितना वो समझ में आ रहा है मुझे जरूर बताना। सो द पेन बॉडी के बारे में आगे बोलता है, इससे अगर आपको छुटकारा पाना है, इफ यू वांट फ्रीडम फ्रॉम दिस, ऑब्जर्विंग पेन इंस्टेड ऑफ बिकमिंग इट। ऑब्जर्व करो, मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ऑब्जर्व करो, ना कि उसके अंदर लिव करना शुरू करो। ऑब्जर्व द सोर्स ऑफ इट, हाउ इट इज अफेक्टिंग यू, एंड हाउ टू रेगुलेट इट, rather than being part of it, becoming it, right? Next is allowing emotion to be felt without resistance. इसको आप जबरदस्ती आप इसको बोलो मैं इसको सोचना नहीं चाहता, नो, आपका माइंड ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर आप बोलो मैं किसी पास्ट इवेंट को सोचना नहीं चाहता, ऐसा बोलोगे तो और जोर से आपको वो सोचने पे मजबूर करेगा। सो बेटर इज, don't resist, feel it and observe it, don't react to it. जब आपका मन उथल पुथल हो तो एंगेज होने की बजाय शांत हो जाओ, विड्रॉ करो, डोंट ट्राई टू सॉल्व इट, डोंट ट्राई टू एंगेज विद पीपल, क्योंकि उस टाइम आप एंगेज करोगे तो वो बिल्कुल गड़बड़ ही होगा, राइट? सो अवेयरनेस डिजॉल्व्स द पेन बॉडी। जितना आप इस पेन को समझोगे, उतना उसको, उसका इंटेंसिटी को आप डाइल्यूट कर दोगे। सो अवेयरनेस डिजॉल्व्स द पेन बॉडी, इग्नोरिंग विल नॉट, आई विल नॉट थिंक अबाउट विल नॉट, रिएक्टिंग टू इट विल नॉट। सो जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाओगे, सो यू विल रियलाइज कि देयर इज ग्रेटर एक्सेप्टेंस टू सिचुएशंस एंड पीपल एंड इवेंट्स। Instead of reacting to them, you will get into more balance, acceptance mode mein, and your responses to those situations, whether it is life or SSB, they'll be more controlled, more regulated, and your decisions will have more clarity and inner balance.
इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी, इमोशनल मेच्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, इन सब का रिफ्लेक्शन होगा व्हेन यू आर एबल टू ऑब्जर्व योरसेल्फ। कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया। नेक्स्ट, द पावर ऑफ प्रेजेंस, मतलब व्हेन यू आर प्रेजेंट इन द मोमेंट नाउ, how does it help you, है ना? So presence means full attention to the present moment without judgment, situational awareness, TAT में एक accurate observation, जीवन की घटनाओं का accurate observation without dilution, without distortion. Presence means full attention to the present moment without judgment, no biases, no preconceived notion, no stereotype responses, no coaching wale sir ka inputs. Everything I will create because I have the power to focus in the now, है ना? Presence means full attention to the present moment without judgment, है ना? Next is when attention is rooted in now. When attention is rooted in now, मतलब वर्तमान में mental noise reduces because you're able to cut through what is being presented to you. Ambiguity will start dissolving because your mind is in the present. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको टीएटी के थ्रू देखा जाए कि जब आपको एक डेड बॉडी दिखाया जाता है, आपको किसी कोचिंग ने डाल दिया कि ड्रामा बना दो। नो, डेड बॉडी है, योर आईज आर शोइंग यू, यू नो इट इज प्रेजेंटेड, बट योर माइंड रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट बिकॉज प्रीकंसीव नोशन. This is mental noise, must be eliminated. So mental noise reduces, emotional reactivity drops. You don't react, you respond. You take the gap between the stimulus and the response. Freedom of choice. इस freedom of choice को effectively use करते हो because your awareness is high, है ना? Next is decisions become more clearer, calmer and balanced. सोच के देखो जब आपका life हो या SSB हो, when you are present in the moment, how beautifully you can respond to the entire SSB process. सोच के देखो. And what needs to be practiced? Feel your breath, sorry, है ना? अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व योर थॉट्स, ऑब्जर्व द वे योर माइंड इज प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, notice sensations in the body based on the stimulus presented, feel those sensations, understand those sensations, name those sensations, understand how your mind is reacting and responding to those given situations or the stimulus, and then observe thoughts without engaging, metacognition. Observe your thoughts without engaging. इस लाइन का मतलब समझ में आया? Observe your thoughts without engaging. Observe. आपको पेन से कट करना नहीं पड़ेगा अगर आप ये स्टेप कर लोगे, क्योंकि अंदर ही ऑब्जर्व हो जाएगा, अंदर ही आप रिप्लेस कर सकते हो. मुझे बताना लास्ट लाइन, ऑब्जर्व थॉट्स विदाउट एंगेजिंग. वेरी पावरफुल स्टेटमेंट. क्या समझ में आया? मैं बोलता हूँ ना, गंगोत्री को ठीक कर दोगे तो गंगा ठीक हो जाएगी. सो गंगोत्री को ठीक करने वाला बुक है. एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन पैसिविटी. परिस्थिति को एक्सेप्ट करने का मतलब आप कमजोर नहीं है. एक्सेप्टेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज एक्चुअली स्ट्रेंथ. डेड बॉडी का ड्रामा बनाने से आप कोई भी पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं बनते, आप बेवकूफ बन जाते हो, बिकॉज आप अपने अंदर उस सिचुएशन का एक्सेप्टेंस ही नहीं दिखा रहे हो. कोर क्वालिटी के वीकनेस को छुपा देने से आपका स्ट्रेंथ नहीं है, वो वीकनेस है. ऐसे सिखाने वाले का भी वो वीकनेस है. इनफैक्ट यू शुड एक्सेप्ट इट एंड यू शुड बिल्ड इट, करेक्ट इट. सो एक्सेप्टेंस इज नॉट वीकनेस. कमजोर आदमी नहीं कर सकता, मजबूत आदमी कर सकता है ना? नेक्स्ट इज एक स्टेटमेंट है, एक्सेप्टेंस मीन एक्नॉलेजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर एक्शंस. एक्सेप्टेंस मीन्स acknowledging and understanding your action and behavior and then doing your best to improve them. So अगर dead body है, accept it, understand what are the demands of the situation and handle it. अगर आपका stress prone हो, आपके अंदर suicidal tendency है, depression है, तो there are people who say hide it. No, accept it and understand कि ये weakness आपको life में नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा एंड ग्रेजुअली इसके ऊपर काम करके इसको रिमूव करो. हो सकता है आप एसएसबी में ना सेलेक्ट हो गया तो क्या फायदा, हो गया तो भी आप छुपा के सेलेक्ट तो हो जाओगे, लेकिन बीमारी तो अभी भी अंदर होगा. वो एकेडमी में जाके आ जाएगा, एकेडमी में जाके कोई सुसाइड कर लेता है या कोई करप्शन में फंस जाता है. अभी एक ऑफिसर 2 करोड़ का कोई डिफेंस का प्रोक्योरमेंट में फंस गया है, आपको पता है. सो इसका मतलब है छुपा के तो सेलेक्ट तो हो गया, बट वो कीड़ा बाहर आ गया. सो एक्सेप्टेंस is not weakness, it is actually strength.
कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया. सो एक्सेप्टेंस मीन्स एक्सेप्टिंग व्हाट इज इन द मोमेंट. इस मोमेंट में जो सत्य है उसे मैं स्वीकार करता हूं. I will not manipulate it, I will not corrupt it, I will not distort it, I will accept it the way it is. Acting from clarity, not resistance. अब वो dead body हो या कुछ भी हो, I will accept it and I act with clarity, not with resistance, not with defense mechanism. कितने लोगों को relevant लग रहा है ये? I'm trying to connect it with the SSB preparation so that you start making meaning out of it. है तो बुक ये पावर ऑफ नाउ, इसको आपने अगर ऐसे ही पढ़ लिया तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड इसके पीछे का जो हुआ है, बट नाउ व्हेन यू रीड इट यू विल रियलाइज कि दिस इज वेरी प्रोफाउंड. एंड अगर आप कमेंट लिखोगे तो आई विल मेक सिमिलर वीडियो फॉर अदर बुक्स आल्सो. सो व्हेन यू एक्सेप्ट द प्रेजेंट, एक्शन बिकम्स इफेक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव. सो जब आप टीएटी लिखते हो, मैं बार बार टीएटी से बोल रहा हूँ, दैट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेस्ट in the entire SSB. 70% weightage है psychological test में. So when you accept the situation present in the TAT, your action becomes effective instead of reactive. आप हीरो बना रहे हो, हीरो नहीं बनाना है, आपने सिचुएशन को समझना है और सिचुएशन को समझकर सिचुएशन सेंट्रिक सोचना है, ना कि हीरो सेंट्रिक ऑयल को दिखाना. कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद दिख जाएगा, मैनिफेस्ट होगा. Have you understood? नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है ईगो एंड अनकॉन्शियस बिहेवियर. ईगो एंड अनकॉन्शियस बिहेवियर. द ईगो थ्राइव्स ऑन, ईगो किस चीज के ऊपर फलता फूलता है? कंपैरिजन. भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसा, उसका इंग्लिश मुझसे अच्छा कैसा, छोटे भाई का नंबर मुझसे ज्यादा कैसे आया. कॉन्फ्लिक्ट लड़ने में मजा आता है. ईगो को कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करो, है ना. एक बुक है ईगो इज द एनिमी, रयान हॉलिडे करके. इस बुक में बहुत अच्छे से बताया कि हाउ ईगो डैमेजेस अस, हाउ ईगो रिमूव्स द गुडनेस फ्रॉम अस, एंड हाउ ईगो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को डैमेज करता है, एंड व्हाट आर द वेज टू कम आउट ऑफ इट. सो ईगो थ्राइव्स ऑन कंपैरिजन, इट कॉन्फ्लिक्ट्स, and ego identified through roles, achievements and suffering. I am a colonel साहब, दिस इज माई अचीवमेंट, आई एम अ टेडेक्स स्पीकर, मैंने ये किया है, मेरे इतने क्लियरेंस है, मैं पीएचडी किया है. इन सफरिंग में मैं तो दुखी आत्मा हूँ, मेरे साथ तो जीवन बहुत तकलीफ दे रहा है. सो ईगो अटैचमेंट किस टाइप के होते हैं? ईगो आइडेंटिफाई द रोल्स, अचीवमेंट्स एंड सफरिंग. मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं आईपीएस ऑफिसर, रिटायर हो गया भैया, अब भी नहीं छोड़ रहा. क्यों? अटक गया ईगो में. So presence in the now. When you वर्तमान को accept करके, when you are there in the ego, it weakens the ego naturally. There is greater acceptance. For example, I was a colonel in the army while in service. Now I'm a retired colonel. So मेरे जो privileges थे as a serving officer, they are no more there. So I must be able to disengage from that earlier role and accept this newer role. अभी आप लोग का जमाना है, young boys and girls will join the army, you will reach where I was there some time back. So there's no point being jealousy of you. That's the way the life operates. So there's no point getting stuck in the past. भैया मैं IPS ऑफिसर था, थे यार, अब खत्म हो गया. You accept the वर्तमान ना. When you don't accept the वर्तमान, you're in constant state of struggle कि मुझे लोग इज्जत क्यों नहीं कर रहे. भैया इज्जत आप अपना नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपको अपना बदला हुआ स्टेट एक्सेप्ट नहीं हो रहा. सो प्रेजेंस वीकन्स द ईगो नेचुरली. बताना क्या समझ में आया? यू डोंट फाइट, यू आउटग्रो इट. आपको ईगो के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, आप आउटग्रो कर दोगे ईगो से आगे, एंड देन यू बिकम अ मैन विथ बैलेंस्ड ईगो. ये लाइन बहुत अच्छा लगा मुझे. यू डोंट फाइट इट, you outgrow it. So you have to outgrow your ego. You don't have to fight with your ego. Beautiful. है ना. Now let's talk about relationship and awareness. है ना. कैसे the power of now के बुक के थ्रू आप रिलेशनशिप को समझ सकते हो, और रिलेशनशिप में अवेयरनेस से कैसे आप चीज़ों को समझ सकते हो. Many relationship fail because two egos interact instead of two aware individual. कल को आपकी भी शादी होगी, कल आप ऑफिस में जाओगे, बॉस के साथ झगड़े होंगे, सबॉर्डिनेट के साथ होंगे. व्हाट हैपेंस इज, जब दो लोग, भले हस्बैंड वाइफ हो या मम्मी पापा हो या आप और आपके सबॉर्डिनेट हो, आप और आपके दोस्त हो, मेनी रिलेशनशिप फेल बिकॉज टू ईगो इंटरैक्ट.
मम्मी और पापा का ईगो, आपने कैसे बोला, तुमने कैसे बोला, तुमने ऊंची आवाज, तुमने ऐसे कैसे बोला. सो मेनी रिलेशनशिप फील बिकॉज ऑफ टू ईगो इंटरैक्ट इंस्टेड ऑफ टू अवेयर इंडिविजुअल. व्हेन यू आर अवेयर एज अ पर्सन, then you understand कि how my word, thoughts and actions are impacting the other person. मेरे शब्द, मेरे विचार और मेरे व्यवहार किस प्रकार दूसरे को प्रभावित कर रहा है. एंड व्हेन यू आर सेंसिटिव टू दैट, you also become aware that if I change within me, that change will bring a change in the other person. So you don't have to change other person, you change yourself and others will change as an influence to your change. Have you understood? So बहुत बढ़िया बात है. मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको मैं अलग सा रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो बात बोलूंगा उस पर कवर करूंगा. रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ. The foundation of any relationship, the foundation of any relationship is not how two people are speaking with each other or how two people are behaving with each other. These are social masks. ये सामाजिक मुखौटा है. The basis of any relationship is how two people are thinking about each other. अगर मैं अपने पार्टनर के बारे में अच्छा विचार रखता हूं, वो मेरे व्यवहार, मेरे बोल में आएगा. बट अगर मेरे विचारों में ईगो है, कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, देन उस सोच से जब मैं बात करूंगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट बाहर आएगा. है ना. एसएमएल का जो स्टेटमेंट है, इफ यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट इन इनर वर्ल्ड, यू विल बी इन कॉन्फ्लिक्ट इन आउटर वर्ल्ड. उसी जगह में इफ यू आर इन हार्मनी इन इनर वर्ल्ड, यू विल बी इन हार्मनी इन योर आउटर वर्ल्ड. और ये चीज़ें आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट, आपके जीटीओ, आपके इंटरव्यू में इतने अच्छे से खुल के आता है. एंड DIPR हैज taught us how to observe them as part of our assessment. So we are good assessors, GTO, interviewing officer and साइकोलॉजी. वी आर गुड एसेसर्स. बट अनफॉर्चुनेटली SSB की ट्रेनिंग में हमको असेसमेंट नहीं करना है, हमको डेवलपमेंट करना है. देयर इज अ डेफिशिएंसी. दैट्स वाई हम लोग, जो आपने देखा होगा, टिप्स एंड ट्रिक्स दे देते हैं इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग यू. छुपाने की बात बोल देते हैं, कोर क्वालिटी छुपा दो, सुसाइड छुपा दो. दिस अ डेफिशिएंसी. हमें DIPR ने असेसमेंट सिखाया है, डेवलपमेंट नहीं सिखाया. पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं सिखाया, पर्सनालिटी असेसमेंट करना सिखाया है. इसलिए हम ट्रेनिंग में, कोचिंग में पर्सनालिटी मैनिपुलेशन कर देते हैं. मुझे जरूर बताना क्या समझ में आया. सो प्रेजेंस ब्रिंग्स लिसनिंग विदाउट डिफेंसिवनेस. So when you are aware, when your mind is in the present, when you're able to apply that metacognition, thinking about your own thinking, you start listening to the other person without being defensive. अदरवाइज हमारा डिफेंस मैकेनिज्म कि मैंने जो बोला वो सही है, उसको डिफेंड करने में चला जाता है. बट व्हेन यू आर अवेयर, then you don't defend, you listen, you understand. It's called active listening. सोच के देखो, अगर CIQ में जब पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हो, he is actively listening, और आप डिफेंस में चले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा. अंडरस्टैंड. सो एक्टिंग विदाउट रिड्यूस इमोशनल ड्रामा. ये जो इमोशनल ड्रामा, रोना धोना, मारपीट, गुस्सा होना, ये सब खत्म हो जाएगा. क्यों खत्म हो जाएगा? यू आर अवेयर कि ये सब हो रहा है. And awareness, the first step. Second step is regulation. So emotional awareness and emotional regulation, which is also called social intelligence, which will lead to emotional maturity. Is emotional awareness, emotional regulation oblique intelligence and emotional maturity, इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट लिख के बताना. It will be very very useful both from SSB perspective and more so for the life. अगर आप कमेंट लिखोगे तो I'll definitely make it. And this will help you to create space between trigger and response. Trigger is कि भैया stimulus, response is सोच समझ कर response. बट अगर आप इस अवेयरनेस को एक्टिवेट नहीं करोगे तो ट्रिगर आते रिएक्ट कर जाओगे, रेस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे. तो मुझे कमेंट लिख के बताना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिंग टू अ सिचुएशन एंड रेस्पॉन्डिंग टू अ सिचुएशन. सोच के देखो, साइकोलॉजिकल टेस्ट में इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, इफ यू स्टार्ट रेस्पॉन्डिंग, कितना बढ़िया हो जाएगा आपका रेस्पॉन्स. इट इज पॉसिबल, राइट. सो रिलेशनशिप अवेयरनेस में, अवेयरनेस ट्रांसफॉर्म रिलेशनशिप विदाउट लेक्चर्स और कंट्रोल. आपको किसी को भाषण देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है. एब्सोल्युटली अवेयरनेस जो है वो अगले बंदे को ट्रांसफॉर्म कर देगा. बट इससे पहले कि अगला अवेयर हो, यू नीड टू बी अवेयर. मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग. जब गंगोत्री साफ तो गंगा साफ. ब्यूटीफुल बुक, द पावर ऑफ नाउ. ठीक है, आगे चलते हैं.
सो सफरिंग एज अ टीचर, बहुत बार हमारे जीवन में बुरी घटनाएं हो जाती हैं, दर्दनाक घटनाएं हो जाती है, बहुत दर्द होता है, बट जब उन घटनाओं को इनिशियल उथल पुथल से बाद में जब उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, यू रियलाइज द सफरिंग हैज कम विद अ पर्पस. इट सफरिंग टीचेस यू, इट enables you, इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन. क्या मतलब है? एक कोट है, द पेन एंड सफरिंग दैट कम्स टू अस हैज अ पर्पस इन आवर लाइफ. इट इज ट्राइंग टू टीच अस समथिंग, वी शुड लुक फॉर इट्स लेसन. जीवन हमें हर मोड़ पे, हर घटनाओं के थ्रू कुछ ना कुछ सिखाता है, और हमारे जीवन के जो पेनफुल घटनाएं, वो शायद बहुत बढ़िया टीचर्स है. मेरे लाइफ में इतनी पेनफुल इवेंट्स हुए हैं. आई एम हैप्पी टू से that those painful events have not made me bitter. It has only made me better. Many things that I'm doing today, including this video and this class that I'm taking, it is because of certain painful events in my life. Not one, two, many. So, जब वो painful event होते तो हमें बुरा लगता है, but the point is, how do you deal with them? It gives you tremendous amount of learning, confidence, and it reflects a lot of strengths operating. Only then you can bounce back from those failures. उसके बारे में अलग सा बात करूंगा sometime, अगर आप कमेंट लिखोगे तो. So suffering pushes people towards awareness when resistance become unbearable. So जब हम सफ़र करते हैं घटनाओं से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, उस टाइम हमें फोर्स करता है जीवन चिंतन में जाने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन मोड में, सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में. सो जो मेटाकॉग्निशन मैं क्लास के थ्रू कराता हूँ, जीवन हमें तोड़ के कराता है सफरिंग के थ्रू. सो सफरिंग पुशेस पीपल टुवर्ड्स अवेयरनेस व्हेन रेजिस्टेंस बिकम अनबियरेबल. जब रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, अनबियरेबल होता है, तो हम चिंतन में चला जाता है. देखना, जब जब जीवन ने हमें तोड़ा है, तब तब हमने चिंतन किया है, और उन चिंतन से हमारा उत्थान, मतलब आग से तप के जैसा लोहा निकलता है, ऐसा होता है. मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो है, the learning has happened because of this deep suffering and the process of reflection after that. I hope you understand that. So once awareness is present, suffering is no longer needed. It is learning. It is learning through suffering. It is घटना वही है, नजरिया चेंज हो जाता है. I hope you understand that. सो इस बुक का सारांश को अगर एक लाइन में बोलना है, तो द मोमेंट यू स्टॉप लिविंग इन योर हेड, दैट इज इन द पास्ट एंड द फ्यूचर में, एंड स्टार्ट लिविंग इन नाउ, प्रेजेंट में, लाइफ बिकम्स सिंपलर, कामर एंड मोर रियल एंड मोर ऑथेंटिक. दिस इज व्हाट यू शुड बी एज अ पर्सन इन लाइफ एंड इन एसएसबी. एसएसबी इज अ सबसेट ऑफ लाइफ. जरूर बताना इस वन लाइन से क्या समझ में आया आपको. सो वाई दिस बुक वर्क्स, है ना, बुक्स तो बहुत सारे, इस बुक में क्या खासियत लगा? इट इज़ नॉट थियोरेटिकल फिलोसफी, ये प्योर थियोरी के ऊपर नहीं है, इसके ऊपर सत्य घटनाओं के आधारित है. एंड देन Q&A, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, इट फोकसेस ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस. आप अपने अपने जीवन की घटनाओं को इस बुक के घटनाओं के साथ में डालो और उसको एनालाइज करके दे देगा ये बुक, है ना. फोकसिंग ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस, तो आपको CIQ को बिल्ड करने में बहुत मदद मिलेगा. ना भी हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड एज पार्ट ऑफ द लाइफलाइन एनालिसिस विल बी एबल टू डू इट. इट ऑफर्स सिंपल रिपीटेबल प्रैक्टिसेस. इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है घटनाओं को हैंडल करने का, वो बहुत सिंपल है, और उसको आप रिपीट कर सकते हो अलग अलग घटनाओं पे टू हैंडल दो सिचुएशन. सो it works in that way. It cuts through overthinking and not add to it. ये बुक आपको एक्सेस ओवरथिंकिंग में ना ले जाने के बाद बजाय ओवरथिंकिंग को रिड्यूस करने में मदद मिलेगा. सो मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना. ये मेरा फर्स्ट बुक रिव्यू है. कोशिश किया है मैं इसके साथ जस्टिस करने के लिए, और आप लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट लाने के लिए कि if you don't have any hobbies and interests, even though I keep saying कि यार start book reading, कम से कम 3 से 5 बुक तो पढ़ लो. Then people say कैसे पढ़ना सर, इसको क्या पूछना है, तो I thought I'll help you by making this video. जरूर कमेंट लिख के बताना. And if you feel कि this is useful, so let me know which other books I should do it. आप मुझे बुक का रेफरेंस भेजो, वो उसका कवर पेज का फोटो भी भेज दो, and I'll make it इन द सब्सिक्वेंट वीडियो. सो जरूर कमेंट लिखना, और मुझे ये भी कमेंट लिख के बताना कि इस बुक को मैंने एसएसबी के प्रिपरेशन के साथ जोड़ने की कोशिश किया है. सो हाउ इज दिस बुक द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोले, have I been able to connect the dots between the book or the knowledge in the book with your preparation the SSB, and
How did you find that correlation? Was it useful? जरूर कमेंट लिख के बताना. And you have to understand, especially in the interview, the entire CIQ is from your past, early home background, education, spare time, which you have to speak in the present, interviewing officer के सामने, and future में outcome, conference में आपको recommend होना है. So there is a correlation. इसको मैं अगले वीडियो में, based on your comment, I'll put it as RF Nav का part 2. प्रोवाइडेड यू गिव मी एडिक्वेट कमेंट. जरूर लिख के बताना. इसके अलावा जो लोग एफओसीपी का ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, 4 वीक्स, 8 वीक्स, 12 वीक्स कॉम्पोजिट बैच, बोथ SML एंड SSB, या फुल साइक टेस्ट असेसमेंट या पर्सनल इंटरव्यू, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 9090099035. है ना. एवरी सैटरडे वी ऑल्सो हैव दिस free demo class. You're most welcome to attend that. And in case you have not already subscribed to the A4CP YouTube channel, do subscribe. There are many videos, in-depth videos, not superficial. So do subscribe it, share with your friends, and press the bell icon so that you get instant notification on the fresh videos. Thank you, and may God bless you. Thank you very much.